تنم فرسودہ جا پارا زِ ہجران یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پارا زِ ہجران یا رسول اللہ دلم پج مردہ آوارا زِ سیاہ یا رسول اللہ دلم پج مردہ آوارا زِ سیاہ یا رسول اللہ یا رسول جو سوئے من گزر آری مالک یوم الدین منے مسکی زناداری فدائے نقش نالینت کو نم جان مکن محروم جان میرا درا یا رسول اللہ خدایا آمین الحمدللہ رب العالمین کرم بارے دیگر دیگر کن اللہم رب دلم پج مردہ آوارا زِ سیاہ یا رسول اللہ ذکر دا خیش حیرانم سیاہ شد روز سیانم پشیمانم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم پڑھی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله
وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے حضور ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام عزیز بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور آج کے جو مختلف موضوعات ہیں اسی مناسبت سے یہ آیہ کریمہ کا انتخاب کیا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے محبوب، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق میری اور آپ کی مدد فرمائے، اور جن موضوعات پہ گفتگو کرنی ہے اللہ پاک ان کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ آج سفر المظفر شریف کی 21واں دن ہے، اور حضور علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس پاک بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ لاہور میں منایا گیا، اور اسی ماہ مبارک کی 25ویں شب کو 25ویں کو حضور سیدی اعلیٰ حضرت مجدد دین ملت الشاہ امام احمد رضا خان قادری بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس پاک بھی منایا جاتا ہے۔ آج 8 ستمبر ہے، 7 ستمبر کو یوم تحفظ عقیدہ ختم نبوت منایا جاتا ہے۔ تو یہ مختلف نسبتیں اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، تو اس حوالے سے انشاءاللہ تعالی چند لمحے جو میرے پاس ہیں اس پر گفتگو ہوگی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی میری زبان پر کلمہ حق کو جاری فرمائے، اور جو بیان ہو اللہ پاک اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے حضور سیدنا داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو طریقت کے امام ہیں اور رہبر شریعت ہیں، علوم ظاہر و باطن کے مرشد کامل ہیں، اور ان کا نام نامی اسم گرامی حضرت علی ہے، اور یہ حضرت عثمان یعنی ان کے والد کا نام عثمان ہے، ان کے بیٹے ہیں، اور ان کا تعلق بھی غزنی سے ہے، اور یہ افغانستان کا حصہ ہے۔ اور آپ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد پاک میں سے، اور آپ نجیب الطرفین سید ہیں، 2 نوروں والے ہیں، یعنی آپ والد کی طرف سے حسنی ہیں اور ماں کی طرف سے آپ حسینی ہیں۔ دونوں نسبتیں آپ کو اللہ پاک نے عطا فرمائی ہیں۔ امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ماں کی اولاد میں سے، یہ نسبتیں آپ کو حاصل ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو یوم ولادت ہے اس کے بارے میں کوئی صحیح تاریخ تو نہیں ہے، بہرحال کچھ مورخین نے لکھا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ 400 ہجری یا 500 ہجری کے آغاز میں آپ پیدا ہوئے، 400 ہجری کے آخر میں اور
5ویں ہجری کے آغاز میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی اور آپ کا جو شجرہ نسب ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ کا نام علی ہے، آپ کے والد کا نام عثمان ہے اور ان کے والد کا نام سید علی ہے، پھر ان کے والد کا نام سید عبد الرحمن ہے، پھر ان کے والد کا نام سید عبداللہ ہے، پھر ان کے والد کا نام ابو الحسن علی ہے، پھر ان کے والد کا نام حسین اصغر ہے، پھر ان کے والد کا نام سید زید ہے، پھر ان کے والد کا نام حضرت سیدنا امام حسن ہے، پھر ان کے والد کا نام حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یوں آپ کا والد کی طرف سے جو شجرہ نسب ہے وہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ مادر ذات ولی ہیں، ماں کے پیٹ سے ہی ولایت کا جو تاج ہے اپنے سر پر سجا کے اس دنیا میں آپ تشریف لائے ہیں۔ حضرت علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش ان مقبولان بارگاہ خدا و مصطفیٰ میں سے ہیں کہ جن کے بارے میں قلندر لاہوری نے فرمایا کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں زنجیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ حضرت علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی بدولت اللہ پاک نے بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کے نور کے اجالے روشن فرمائے، اور وہ کمال ہستی ہیں کہ عطائے رسول ہند الولی سلطان الہند جناب حضرت سیدنا خواجہ معین الدین حسن سنجری رضی اللہ تعالی عنہ جب رسول پاک کے حکم سے ہندوستان تشریف لائے تو آپ ملتان کے راستے جب لاہور پہنچے تو حضرت کے مزار پر آپ نے 6 ماہ تک وہاں آپ نے عبادت فرمائی اور حضرت داتا علی حجویری سے یعنی آپ کے مزار سے اقتصاب فیض فرمایا۔ آج بھی جب وہ فیض لے کر وہاں سے اٹھے جو آپ نے شعر فرمایا وہ آج بھی جو ہے وہ ہر آدمی کے زبان پر ہے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کے سارا پیر کامل کاملاں را رہنما، کہ حضرت علی بن عثمان داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فیضان کا پہاڑ ہیں، خزانہ ہیں، اور ان کا فیضان پورے عالم کو جو ہے وہ پہنچ رہا ہے، اور یہ کامل جو لوگ ہیں ان کے لیے بہترین رہنما ہیں، اور جو ناقص ہیں ان کے لیے یہ پیر کامل ہیں۔ ناقصوں کے لیے پیر کامل ہیں اور کاملین کے لیے بہترین رہنما ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جو خود چشتیوں کے شہنشاہ حضرت معین الدین چشتی، جن کو اللہ کے نبی نے فرمایا، بشارت دی، فرمایا جاؤ معین، ہم نے تمہیں ہندوستان کی بادشاہت عطا فرمائی، وہاں جاؤ اور جا کر ہمارے دین کا اسلام کا جو ہے وہ پرچم بلند کرو اور دین اسلام کی تبلیغ کرو۔ رسول پاک کی بارگاہ سے بھیجا ہوا بندہ حضرت داتا صاحب کی قبر انور کے قدموں میں بیٹھ کے اور وہاں سے فیض لے کر وہ یہ پکار رہا ہے کہ یہ کتنی بڑی ہستی ہیں۔ بتاؤ، جو اتنا بڑا سلطان جس کو اللہ کے نبی نے سلطان بنا کے بھیجا ہو، بتاؤ جب وہ ان کی عظمت کا اقرار کر رہا ہے تو پھر داتا صاحب کی عظمتوں کا عالم کیا ہے۔
یہ وہ मकबूलाने बारगाह मुस्तफ़ा हैं, उनमें से एक है कि जिनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई अल्लाह को रूए ज़मीन पर पसंद आता है तो अल्लाह जिब्रील को बुलाता है। जिब्रील हाजिर होते हैं तो अल्लाह फरमाता है कि फलां बिन फलां मुझे महबूब है, मुझे पसंद है, वो मेरा दोस्त है। तो जिब्रील अर्ज करते हैं, या अल्लाह मेरे लिए क्या हुक्म है? अल्लाह फरमाता है, जिब्रील तू भी उसे अपना दोस्त बना ले, तू भी क्या कर ले, उसे अपना दोस्त बना ले। तो जिब्रील भी उसे अपना क्या बना लेते हैं? दोस्त बना लेते हैं। और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह हुक्म देता है कि जाओ आसमाने दुनिया पर जितने मलाइका हैं सब में जाकर ये ऐलान कर दो कि जमीन पर फलां बिन फलां से अल्लाह प्यार करता है, वो अल्लाह से प्यार करता है, मोहब्बत करता है। तो सारे मलाइका उसके साथ मोहब्बत करो, उसको अपना दोस्त बना लो। और उस मेरे दोस्त के लिए रब फरमा रहा है कि मुझसे मेरी रहमत की, बख्शिश और मगफिरत की दुआएं करो। तो तमाम मलाइका अल्लाह के उस दोस्त के लिए अल्लाह से रहमत की दुआएं करते। और फिर जब आसमान दुनिया पर यह ऐलान हो जाता है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला जिब्रील को हुक्म देता है कि जिब्रील जाओ रूए जमीन पर जितनी मेरी मखलूक है उन सब के दिलों में मेरे इस बंदे की अकीदत और मोहब्बत डाल। आज आप देखें लाहौर में उर्स पाक कल खत्म हुआ, आज रात ही खत्म हुआ, अल्लाह अकबर। लेकिन दाता साहब के उर्स पर अरबो अजम पूरी दुनिया से लोग सफर करके वहां आते हैं, कोई उनको बुलाता नहीं है। ये वो औलिया की मोहब्बत है जो अल्लाह ने तकसीम फरमाई है। अब जब जिस के दिल में अल्लाह ने अपने इस दोस्त की मोहब्बत डाली है वो खिंचा चला आता है। वो क्या है? खिंचा चला आता है। कराची से काफिलों की सूरत में लोग जाते हैं। इस दौरे फितन में जहां रोजी रोटी कपड़ा घर के अखराजात बिजली के बिल से सताया हुआ इंसान है, लेकिन अल्लाह के उस दोस्त के उर्स पाक की तकरीब में वो यहाँ से काफिलों की सूरत में वहाँ हाजिरी देने जाते हैं और हर साल जाते हैं। तो वो खुश नसीब लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह अपने दोस्तों की मोहब्बत के लिए पसंद फरमाता है। तो हजरत दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने मुर्शिद गिरामी के हुक्म पर आप जो है ये पंजाब की सरजमीन पर आप तशरीफ लाए। और हुजूर दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आप हाफिज कुरान भी हैं, कारी कुरान भी हैं, आप आलिम भी हैं, बाअमल भी हैं, आप मुफ्ती भी हैं, आप शेखुल हदीस भी हैं, आप शेखुल तफसीर भी हैं, आप मुफस्सिर कुरान भी हैं और मुहद्दिस हदीस भी हैं, आप फिका के भी इमाम हैं। आप जो है यूं समझें कि अल्लाह अकबर बड़े बड़े औलिया वहां आकर जानुए तलम्मुज़ करके आपसे जहां जाहिर का फैज लेते हैं वहीं हुजूर दाता साहब से बातिन का फैज भी वो ले रहे हैं। अल्लाह अकबर। मैंने आपसे अर्ज किया कि हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी हो या इमाम अहमद रजा हो या हुजूर बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर हो, हर दौर के वली ने आकर हुजूर दाता साहब की बारगाह में झोली फैलाई है और अल्लाह ने उन झोलियों को अपने करम और फजल से अपने दोस्त की वजह से माला माल फरमाया। और हर एक ने दाता साहब की फैजान को पाके इकरार भी किया है, इजहार भी किया है। आज भी बड़े बड़े लोग कहते हैं कि जब कोई हमारे मसाइल फंसते हैं तो हम दाता साहब की बारगाह में हाजिर होते हैं, दाता साहब की मस्जिद में जाकर हम नमाज पढ़ते हैं 2 रकात तहज्जुद और दाता साहब के पास बैठकर हम अल्लाह से दुआ करते हैं तो अल्लाह हमारी मुश्किलों को हल फरमा देता है। मुश्किल कुशा तो अल्लाह है, पर जब उसके प्यारों के कदमों में बैठकर जब कोई हाथ उठा देता है तो फिर उसकी गैरत को यह गवारा नहीं कि वो अपने दोस्त की खानकाह से किसी को खाली लौटा दे, फिर वो आने वाले की झोलियां अपने प्यारों के सदके से माला माल फरमा देता। तो मुर्शिद करीम के हुक्म पर आप यहां तशरीफ लाए। जब आप तशरीफ लाए तो हर तरफ जो है वो
हिंदुइज्म था, हर घर में बुत सजाए हुए थे, लेकिन हुजूर दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आकर सबसे पहले यहाँ आपने आके एक छोटी सी मस्जिद कायम फरमाई और वहीं आप अल्लाह की इबादत करते और 1 2 3 इसी तरह करते करते आज आप देख लें कि अल्लाह अकबर पूरी पंजाब की सरजमीन को हुजूर दाता साहब की बरकतों ने जो है वो घेरा हुआ है। अल्लाह अकबर। और आपको फैज आलम कहा जाता है कि आपके फैजान से पूरा आलम जो है वो फैज पा रहा है। हुजूर दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह हकीकी दाता अल्लाह है, पर अल्लाह ने इन्हें अपनी बरकतें तकसीम फरमाने के लिए अपना सफीर मुकर्रर फरमा लिया है। अब ये जहां जहां जाते हैं, हदीस कुदसी है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है कि बंदा फराइज के बाद नवाफिल में जब वो कसरत करता है वो इतना हमारे करीब हो जाता है, रब फरमाता है फिर मैं उसकी आंखें बन जाती हैं। आंखें तो अली बिन उस्मान की होती हैं, पर उसमें नूर अल्लाह का होता है। जब वो जिस तरफ निगाह उठाता है वो मुर्दा दिलों को भी जिंदा कर देता है। अल्लाह अकबर। हुजूर दाता साहब गंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब यहाँ तशरीफ लाए, आपने दीन इस्लाम की जब आपने खिदमत की तो बड़े बड़े जादूगर, बड़े बड़े राजे महाराजे आपके दुश्मन बन गए, लेकिन आपने इस्तिकामत के साथ लेने वाले पीर तो नहीं थे, ये तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दर अक़दस के आपने हक का बोलबाला फरमाया। जहां दिलों में बुतों की मोहब्बत थी वहां आपने एक माबूदे बरहक की मोहब्बत को डाल दी। जिन घरों में बुतों की पूजा की जाती थी और बुतों को पुकारने के कलेमात के राग अलापे जाते थे, वहीं दाता साहब की पाकीज़ा खिदमात और उनकी पाकीज़ा जो है वो दीनी जो है वो इस्लाम की जो तरबियत थी उसके जरिए से आपने उन घरों में कुरान की तिलावतों को जारी फरमाया। अल्लाह अकबर। आज भी हुजूर दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की जो कब्र अनवर है वो आज भी हजारों बेहिदायतों को हिदायत दे रही है। आज वो जो जिंदा लोग काम नहीं कर रहे, आज भी अहलुल्लाह के कबूर से वो फैजान आज भी जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो हुजूर दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह यहाँ फैक्ट्री बनाने, मिल बनाने, यहाँ कारोबार की गर्ज से नहीं आए, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की तबलीग के लिए यहाँ तशरीफ लाए। और हुजूर दाता साहब ने दीन के एवज कोई आपने कोठियां बंगले, कोई आपने जायदादें नहीं बनाई, बल्कि अगर आपने कुछ बनाया है तो वो हजारों जो मुसलमान नहीं थे, बेदीन थे और दीन इस्लाम से जो दूर थे, आपने उन्हें अपने दामन से वाबस्ता करके और अपने हल्का इरादत में शामिल करके हजारों नहीं लाखों सरकार के उम्मती बना के अल्लाह की बारगाह में और अल्लाह के रसूल की बारगाह में पेश किया। ये उनकी दौलत है और ये दौलत का फैजान आज भी लाहौर की सरजमीन से जारी है। तो जो औलियाए किराम की जात पर उंगलियां उठाते हैं तो वो आंखों से मैं तो समझता हूं कि अंधे हैं कि ये वो सच्चे लोग हैं जिनका अल्लाह कुरान में कहता है कि सच्चों के साथ वाबस्ता हो जाओ, तुम्हारा तकवा भी, तुम्हारे आमाल की भी हिफाजत होगी और तुम्हारे ईमान की भी हिफाजत होगी। क्योंकि अहलुल्लाह की जो इरादतमंदों में बंदा शामिल हो जाता है तो फिर शैतान उन पे हमला आवर नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो हुजूर दाता साहब गंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में आप इतनी बड़ी हस्ती हैं कि आपके बारे में आता है कि सरकार गौसे आजम से पहले के आप बुजुर्ग हैं ना, तो आपके बारे में रिश्ते में आप हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के मामू हैं। आप 11वीं वाले जो पीर साहब हैं हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु के रिश्ते में आप मामू जान लगते हैं। और आपके बारे में जो है वो सरकार गौसे आजम का एक कौल मुबारक आता है, आप फरमाते हैं अगर ये मेरे दौर में हयात होते तो मैं इनके हाथ पे बैअत होता, मैं इनके हाथ पे बैअत होता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।
अरे आप खुद देख लेना, हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का जमाना और सरकार गौसे आजम का जमाना एक जमाना है, मिलता है जमाना, कोई दूर का दरमियान में कोई फासला नहीं है। जब मोइनुद्दीन कदमों में बैठ गया है तो फिर सरकार गौसे आजम क्यों ना इसका इजहार फरमाते। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो इसीलिए बहुत बड़ी हस्ती है। और आज इन्हीं बुजुर्गों के तुफैल जब ये 65 की जंग हुई, मजीद जो पाकिस्तान की जंगें हुई इंडिया से, अल्लाह अकबर, वो इंडिया वाले कहते हैं कि रावी की पुल पर कोई सब्ज चोले में ऐसी मखलूक है जो हमारे बम लेते हैं, रावी पुल पर नहीं गिरने देते बल्कि दरियावे रावी में उछाल देते। अल्लाह अकबर। वो हुजूर दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की जाते गिरामी है। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह ताला अलैह जो बाबा फरीद के खलीफा आजम हैं, वो फरमाते हैं कि जिस आदमी को किसी पीरे हक की तलाश हो, जो चाहता हो कि मुझे सच्चा पीर मिले, उसको चाहिए वो दाता साहब की जो किताब है ना कश्फुल महजूब, इसका थोड़ा थोड़ा रोजाना मुताला किया करे, ये किताब उसे मुर्शिद कामिल तक पहुंचा दे। अरे जिसकी किताब में इतनी तासीर है, बताओ जो उसके कदमों में उनके दौर में बैठते होंगे, फिर दाता उन्हें कहां पहुंचाता होगा। अल्लाह अकबर। दाता किसी को दुनियादार नहीं बनाता था, बल्कि दाता तो दीनदार बनाता था। है दाता रब से तोड़ने वाले का नाम नहीं, दाता तो रब से जोड़ने वाले का नाम है। अल्लाह अकबर। जिसने हजारों लाखों हिंदू ईसाइयों को और सिखों को और कई बेदीनों को आपने जो है वो अपने जो है वो हुस्ने अमल से, हुस्ने अखलाक से, हुस्ने किरदार से, हुस्ने गुफ्तार से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को अपने ऊपर नाफिज करके आपने ऐसा लोगों के सामने पेश किया, लोग कहने पर मजबूर हो गए कि अरे ये 400 साल बाद, अल्लाह अकबर, 450 साल बाद अगर गुलामे मुस्तफा की जात में इतने पाकीज़ा जलवे हैं तो बताओ मोहम्मद मुस्तफा की जात के जलवों का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर। चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, ये काम है उनके गुलामों का, सरदार का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो 19 सफर उल मुजफ्फर शरीफ को हुजूर दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स होता है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हम जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करें कम है कि अल्लाह पाक ने ऐसे पाकीज़ा लोग हमें अता फरमाए हैं, जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी नहीं की, हिंदुओं की गुलामी नहीं की, राजों महाराजों के कसीदे नहीं लिखे, जिन्होंने आकर इस हिंदुस्तान में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के कसीदे गाए, जिन्होंने कुरान की आयतें पढ़ी है, और जो खुद अल्लाह से मिले हुए थे, और खुद तो मिले हुए थे लेकिन कई जो रब से दूर थे उनको भी अपने साथ मिला के रब से मिला दिया है। अल्लाह अकबर। तो कयामत के दिन इन्हीं लोगों के तुफैल अल्लाह हम पे करम फरमाएगा। बस जरूरत इस अमर की है जो इस वक्त मैंने आपके सामने जिस हस्ती का जिक्र किया है, इनकी तालीमात का खुलासा यही है कि सिर्फ हमारा नाम ना लेने वाले बनो, बल्कि हमारे किरदार की खुशबू भी तुम्हारे अंदर से आनी चाहिए। हुजूर दाता साहब पंजगाना नमाज की इमामत खुद फरमाते थे। कुछ लोगों ने कह दिया कि दाता साहब ने जो मस्जिद बनाई है इसका रुख किबले की तरफ नहीं है। उलमा हासिदीन हर दौर में रहे हैं, फतवा लगा दिया, कहा इनका किबला ही दुरुस्त नहीं है। अल्लाह अकबर। आपने जब ये एतराजात बढ़ गए तो आपने उस दौर के तमाम उलमा को दावत की, और जब नमाज का वक्त हुआ तो आपने इमामत फरमाई, और जब उलमाए किराम ने सफ़ें बांधी, दाता साहब ने तकबीर उला कही, तो अल्लाह ने इस मर्द कलंदर की विलायत की हकीकत को उन हासिदीन उलमा पे भी वाज़े फरमाया। जब तकबीर उला कहा तो सामने जब उन उलमा ने देखा तो बैतुल्लाह शरीफ जगमगा रहा था। अल्लाह अकबर। उन्होंने
वही नमाज रोक दी, कदमों में गिरे, कहने लगे अब नमाज पढ़ेंगे, नमाज नहीं होगी, क्योंकि हम तो आपके हवाले से दिल में हसद रखते थे, हम तो हकीकत से नाला थे, हमें तो हकीकत का पता नहीं था। अब पहले हमारी उन गलतियों को माफ फरमाइए, फिर हम आपको दुनिया का भी इमाम बनाते हैं, आखिरत का भी इमाम बनाते हैं। अल्लाह अकबर। किसी ने कहा पीर तो बहुत बड़ा है लेकिन मस्जिद छोटी है। क्या? पीर तो बहुत बड़ा है लेकिन क्या है, मस्जिद छोटी बनाई है। आपने फरमाया जब मखलूक खुदा बढ़ जाएगी तो रब अपना खुद ही घर बड़ा बना देगा। जितने नमाजी हैं उतना घर है। जब रब अपनी मखलूक को हिदायत देगा, जब वो बढ़ जाएंगे तो वो वुसअत वाला रब अपने घर को भी वसी के इंतजामात खुद ही फरमा देगा। ये वो बुजुर्ग थे जिन्होंने हमारे दिलों को अल्लाह की याद से मालामाल फरमाया। आज भी उनकी तालीमात पढ़ें तो उनकी तालीमात एक हिदायत का जो है वो हमें वहां से दर्श मिलता है, खैर का दर्श मिलता है, भलाई का दर्श मिलता है और कामयाबी की तरफ वो बुलाते हैं, हमें फिक्र आखिरत देते हैं। अल्लाह अकबर। वो हमें हर बुराई से रोकने का दर्श देते हैं। उनकी जो पाकीज़ा कुतुब हैं उनके अंदर जो हमें तालीमात मिलती है। तो अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला हमें औलियाए किराम के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी यही फरमाया, वत्तबि सबीला मन अनाब इलै, कि जिन्होंने अल्लाह की तरफ रुजू कर लिया है, जिन्होंने अल्लाह से लो लगाई है, जिन्होंने अल्लाह को राजी कर लिया है, जो अल्लाह के कुर्ब में, कुर्ब खास में चले गए हैं, अब तुम उनकी पैरवी कर लो। जहां वो पहुंचे हैं उनकी पैरवी तुम्हें भी वहां पहुंचा देगी। अल्लाह ने उनको कामयाबी अता फरमाई है। अगर आज तुम भी उनकी सीरत को अपना लो, उन जैसा किरदार अपना लो। दाता साहब ने सारी जिंदगी कभी झूठ नहीं बोला। अल्लाह अकबर। आपने जो है वो कभी अपने मुरीदीन को दूध में मिलावट का दर्श नहीं दिया। आज भी जो है वो वहां लाखों मन जो है वो दूध फी सबीलिल्लाह जो है वो आज तकसीम किया जाता है। और खालिस दूध, पाकिस्तान में शायद खालिस दूध कहीं से मिले, लेकिन दाता साहब का जब उर्स होता है तो ये जो गुज्जर बिरादरी है ये वहां पर खालिस दूध वहां पर दाता साहब के सबील में इस्तेमाल फरमाते हैं। ये वो लोग थे कि दाता साहब से पहले यहाँ जादूगरों का राज था। जो बड़ा जादूगर था वो कहता था दूध जो है वो मेरे पास लाओ, वरना नहीं लाओगे तो मैं जो है वो क्या होता था, लोगों के, जानवरों के थनों से अल्लाह अकबर खून जारी हो जाता था। ऐसे जालिम लोग थे। ऐसे मुआशरे में दाता साहब आए और आकर आपने इस्लाम की शमा को रोशन फरमाया। ऐसे बेहिदायतों को दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मुसलमान बना के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। एक माई साहिबा दूध लेके जा रही थी। आपने फरमाया माई साहिबा कभी हमें भी दूध दे दिया करो। कहने लगी मैं वहां जा रही हूँ जादूगर के पास, अगर नहीं ले गई तो दूध। आपने फरमाया आज मुझे दे जाओ, देखो कैसे तुम्हारे जो है वो जानवरों से चमकता हुआ चेहरा था। बुढ़िया ने कहा इतना सोने चेहरे वाला कभी झूठ तो नहीं बोल सकता। दूध दिया, लेकिन वहां से कुछ इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता उसका जादू खत्म हो गया। अल्लाह अकबर। दाता साहब के पास आया, उसने मुकाबला किया। अब इस्लाम पर तो कोई जादू गालिब नहीं आ सकता। दाता साहब ने अपनी रूहानी ताकत से उसे मरगूब कर दिया और वो आखिरकार मुसलमान हो गया। आज भी जो है वो शेख हिंदी के नाम से आज भी उसका मजार वहां मौजूद है। अल्लाह अकबर। हुजूर दाता साहब ने उसे फिर अपना जानशीन बनाया और उससे फिर दाता साहब का फैजान चला। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो हुजूर दाता साहब बहुत बड़ी हस्ती है, बहुत बड़ी हस्ती है। इसी तरह हमारे बड़े सगीर पाक व हिंद में एक और बहुत बड़ी शख्सियत जिन्हें मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहले सुन्नत इमाम आशिका इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह कहा जाता है। अल्लाह अकबर। आप इतने बड़े आशिक थे और अपने वक्त के मुजद्दिद थे। जब हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां की जा रही थी, गुस्ताखाना इबारतें की जा रही थी, तो अल्लाह ने इस मर्द कलंदर को कुव्वते गोयाई और उसकी कुव्वत अता फरमाई कि इसने उन दुश्मनाने रसूल को ललकारा और अपनी कलम की कुव्वत से, जोरे बाजू से उनका आपने मुहासबा किया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब देखिए जब आपने उनका मुहासबा किया तो अल्लाह अकबर वो
फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को छोड़ के आला हजरत को बिदअती कहने लगे, आला हजरत को बुरा भला कहने लगे, आला हजरत के बारे में जो है वो गलत अफवाहें और लोगों के दिलों को मैला करने लग गए। इरादतमंदों ने कहा, हजरत आप इतनी सख्ती क्यों फरमाते हैं? ये बदबख्त लोग ये तो आपको बुरा भला कहते हैं। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया कि लोगों सुनो, मैं सख्ती इसलिए करता हूं क्यों कि जब मैं इनके हवाले से कुछ लिखता हूं तो ये बदबख्त रसूल पाक की गुस्ताखियां छोड़ के मुझे ही बुरा भला कहते हैं ना, मेरे आबाव अजदाद पे उंगलियां उठाते हैं ना, तो कुछ लम्हों के लिए मेरे आका की शान, मेरे आका की अजमत महफूज हो जाती है। मैंने तो अपनी और अपने आबाव अजदाद की इज्जत को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के दरमियान ढाल बना दिया है ताकि ये बदबख्त अहमद रजा पे उंगलियां उठाते रहे, सरकार के गुलाम के हसब नसब पे उंगलियां उठाते रहे, पर मेरे आका की शान में किसी तरह की गुस्ताखियां न कर सकें। तो हिंदू ने दो फितने इस बड़े सगीर पाक व हिंद में डाले। एक का नाम था फितना कादियानियत, इसका भी आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने डट के मुकाबला किया और आपने बड़े सगीर पाक व हिंद में सबसे पहला फतवा दिया। आपने फरमाया ये जो मिर्जा कादियानी है इसको गुलाम अहमद न कहा जाए बल्कि इसको मिर्जा कादियानी कहा जाए, क्योंकि अहमद मेरे आका का नाम है। आसमानों पर सरकार का नाम अहमद है, जमीन पर हुजूर का नाम मोहम्मद है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सरकार का आसमानों पे नाम अहमद। जब कयामत कायम होगी तो जो तारीफ हमद अल्लाह की मेरे आका करेंगे, ऐसी तारीफ ना कोई नबी कर सकेगा ना कोई और शय कर सकेगा। इसलिए आपका आसमानों पे नाम क्या है? अहमद है। सबसे ज्यादा तारीफ करने वाला, हमद करने वाला तो हुजूर ही सबसे बड़ी रब की हमद करने वाले हैं। और मोहम्मद उसका मतलब है जिसकी बार बार और सबसे ज्यादा तारीफ की जाए और खत्म ना हो, क्योंकि जब सारी कायनात फना हो जाएगी सिवाय रब के रब रब करने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन उस वक्त भी मोहम्मद पर रब दरूद भेज रहा होगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस आशिक ने सबसे पहला फतवा दिया कि ये जो मिर्जा कादियानी है और इसके जितने पैरोकार हैं ये दायरा इस्लाम से खारिज है। ये दायरा इस्लाम से क्या है? खारिज है। और ये मुनाफिक हैं और ये मुर्तद है और ये जिंदीक है। ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल के और मुसलमानों के दुश्मन है। मुसलमानों के क्या है? दुश्मन है। और अल्लाह अकबर, आपने इस पर आपने रिसाले तहरीर फरमाए और आपने खातमुन नबीयीन के जो लुग़वी माना है, इसको जो मुआरिफ है और इसकी जो तशरीह है, इसको आपने बड़े बड़े इज्तिमात में आवाम को जो है वो समझाया। अल्लाह अकबर। फिर आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह के बाद फिर मुजद्दिद दीन व मिल्लत हुजूर सैयदी पीर मेहर अली शाह साहिब ने आके इसका खात्मा फरमा दिया। और फिर सन 1974 7 सितंबर को अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, फिर गुलामान मुस्तफा को अल्लाह ने इजाजत बख्शी कि कौमी असम्बली से भुट्टो साहब की हुकूमत के दौर में अल्लाह पाक ने ये एजाज बख्शा कि अल्लाह पाक ने हमारे उलमा को जो है वो कामयाबी अता फरमाई, मुसलमानों को इस फितने से जो है वो कानूनी तौर पर आगाह फरमाया कि उनको दायरा इस्लाम से खारिज करार दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो हुजूर आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह आशिक रसूल फना फिल्लाह फना फिर रसूल, आप फरमाते थे अगर आला हजरत के दिल के 2 टुकड़े किए जाएं तो एक पर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा होगा, दूसरे पर मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा होगा। और आपको 50 उलूम, बाद ने 150 उलूम पर आपको मुकम्मल दस्तरस हासिल थी। आप एक आलिम भी थे, आप एक मुफ्ती भी थे, आप एक मुफस्सिर भी थे, आप एक मुहद्दिस भी थे, आप वक्त के बहुत बड़े साइंसदान भी थे, बहुत बड़े साइंसदान भी थे, बड़े बड़े साइंसदान।
बड़े बड़े माहिर फल्कियात रियाजियात हुजूर सैयदी आला हजरत के सामने आकर ज़ानुए तलम्मुस करते थे, और आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह उनके जो उक़दे हैं, जो मुश्किलें होती थी, वो चुटकी में आप जो है वो उनको हल फरमा दिया करते। तो हुजूर आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने फितनाए कादियानियत का भी मुकाबला फरमाया, और इसी फितने के मुकाबले के लिए भी अल्लाह ने इस मर्द कलंदर को जो है वो दूसरा जो फितना जिसने आकर हुजूर की अजमत पे हमले किए, जिन्होंने ये लोगों में तासुर दिया कि हुजूर हमारी तरह है, बड़े भाई जितना कदर करो, हुजूर को दीवार के पीछे का इल्म नहीं, इतना इल्म है, इतना इल्म नहीं है, वो हमारी तरह खाते पीते चलते हैं, वो हमारी तरह है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इतनी बड़ी जिन्होंने जसारतें की, हुजूर की शान में गुस्ताखियां की, बेअदबियां की, तो आला हजरत ने उनकी तरफ भी कलम उठाया। इस फितने का भी आला हजरत ने डट के मुकाबला किया। आज भी आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह को 100 साल से ज्यादा अरसा हो गया विसाल फरमाए हुए, आज भी आला हजरत की तहरीरों से इन दुश्मनाने रसूल का आज भी मुकाबला किया जाता है। आला हजरत के इल्म और इरफान से फतावा रज़विया जिसकी 33 जिल्दें हैं, आपने तहरीर फरमाई, और आप अरबो अजम के उलमा के उस्ताद और मुर्शिद ठहरे हैं। अल्लाह अकबर। आपने 2 हज फरमाए। जब आप हज के लिए जाते थे तो अरब के तमाम उलमा आपके साथ इल्मी बास करते थे, और आपको जबरदस्ती, उस वक्त तुर्की का दौर था, ये आजकल की ये सऊदी हुकूमत नहीं थी, तुर्की के दौर में आपको मुसल्लाए इमामत पे अरब के उलमा खड़ा करके अपना इमाम बनाते थे। अल्लाह अकबर। इतनी बड़ी हस्ती, आशिक रसूल, फनाफ रसूल, अल्लाह पाक ने ऐसे पाकीज़ा जो है वो हमें अता फरमाए हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये जो सन 1974 7 सितंबर को, अल्लाह अकबर, जो तारीख साज दिन है, जिस दिन कानूनी तौर पर पाकिस्तान के कानून में कादियानियों को दायरा इस्लाम से खारिज करार दिया गया। भुट्टो साहब की हुकूमत थी, अल्लाह उस भुट्टो की कब्र पर बेहिसाब अपनी रहमतें नाज़िल फरमाए। क्या अगर नूरानी साहब सलामे अकीदत के जो है वो मुस्तहिक हैं, अगर मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी को हजारों सलाम है, तो हमारे इस काम के लिए भुट्टो साहब को भी हजारों नहीं लाखों सलाम है। अगर भुट्टो की हुकूमत थी, ना चाहता, जैसे आजकल के हुक्मरान नहीं चाहते, जो दीनी तबका है उसको ऊपर नहीं आने देते, रिजल्ट तब्दील कर देते हैं। भुट्टो साहब रहमतुल्लाह, भुट्टो साहब ने ये जो है कारनामा सरअंजाम जो दिया है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ये उसका पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमानों पर बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा एहसान है। भुट्टो साहब ने कहा, ये मैं जो दस्तखत कर रहा हूं, ये मैं अपनी जिंदगी का यूं समझे कि मौत के परवाने पर दस्तखत कर रहा हूं। किसके? मौत के परवाने पर। और फिर आपने देखा कि इसकी सजा फिर किस तरह दी जाती है, ये तो आप बेहतर समझते हैं। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला जितने भी हुजूर की खत्म नबूवत के चौकीदार हैं, जितने भी हुजूर की नामूस रिसालत के मुहाफिज़ीन हैं, जो इस दुनिया में हैं, जो चले गए, अल्लाह सब पर अपनी रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाए, और इस फितनाए कादियानियत से अल्लाह हमारी इस उम्मत के नौजवानों को अल्लाह महफूज फरमाए। और आज जो हमारे तालीमी इदारे हैं, ये बेहयाई, फहाशी, उरियानी, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये अभी चंद दिन पहले आपने देखा, ये भावलपुर के अंदर इस्लामिया यूनिवर्सिटी के अंदर जो बच्चियों के साथ हुआ, इसी तरह का एक वाकया यहाँ मलहीर के अंदर एक हुआ है, अल्लाह अकबर, लेकिन दबा दिया गया, क्योंकि इसके अंदर बड़े असर रसूख वाले लोग होते। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आप हजरात से गुजारिश है, आपके बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, यही रोशन ख्याली दी जाती है कि वहाँ का जो निसाब है वो बहुत आला है, बड़ी आला डिग्रियां मिलेंगी। कहीं आला डिग्रियों में उनकी आखिरत न बर्बाद कर देना। अपने बच्चों पर भी आला तालीम दो, मना नहीं कर रहा, आला तालीम दो, आला से आला तालीम दो, लेकिन उनके किरदार पर भी नजर रखो, उनके किरदार पर भी नजर रखो, उनके मामलात पर भी नजर रखो। ये माँ बाप की, बहन भाइयों की जिम्मेदारी है कि वो एक दूसरे के किरदार पर नजर रखें, कहीं वो किसी कादियानी फिक्र या कहीं कैसी किसी यहूदी ईसाई लाबी के नरगे में तो नहीं चल रहे। अल्लाह अकबर। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारी नस्लों में गुलामान मुस्तफ़ा पैदा होने चाहिए, दुश्मनाने इस्लाम नहीं पैदा होने चाहिए।
تو اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ان بزرگوں کی جو ہے وہ عظمت، ان بزرگوں کی قبور پر بے حساب اپنی رحمت و برکتوں کا نزول فرمائے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو وقت کے مجدد ہیں، جن کا ایک ایک پہلو ایسا ہے گھنٹوں گھنٹوں چاہیے جس پر گفتگو کرنے کے لیے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہماری اتوار کو بعد نماز عشاء ان بزرگ ہستیوں کے حوالے سے ایک نشست ہوگی، آپ کو بھی دعوت ہے، آپ بھی اس میں شرکت فرمائیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ جو آج بیان ہوا ہے اس پہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔